اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الغضبیہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والحیبۃ العسکری والغیبۃ الالہ القائم بامر اللہ. بلندتر صلوات پڑھیے گا. عزیزان محترم، جیسے کہ کل اس مجلس عزا میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس مجلس میں ابا عبداللہ حسین کی عزا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے. اس عزاداری کی ایک روح ہے کہ جس کو ہمیں زندہ رکھنا ہے. وہ روح ہے الہی حکومت، وہ روح ہے ولایت علی ابن ابی طالب. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. خداوند متعال نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کے اندر خدا نے کچھ فطرتیں رکھی ہیں. جیسے کہ اس پانی کی مثال دوں گی. اگر کسی کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو اور اس کو آپ دنیا بھر کے مشروب پلا دیں، کوئی بھی شربت پلا دے، کوکا کولا پلا دے، کوئی بھی ایسی چیز پلا دے، لیکن پانی نہ دے، کسی کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. صرف اور صرف یہ پانی ہی ہے کہ جس سے ہماری پیاس بجھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے یہ فطری چیز ہے، یہ نیچرل چیز ہے. اسی طرح اگر ہم کسی سے کہیں کہ تمہیں سانس لینے کے لیے ہم آکسیجن سلنڈر میں فراہم کر دیں گے، لیکن تم کھلی ہوا میں سانس نہ لو، تو ہم مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ہم اس کھلی فضا میں سانس نہ لے لیں. ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو مجبور ہے کہ اس فضا میں سانس نہیں لے سکتے، جن کو سلنڈرز لگے ہوئے ہیں، کس دقت سے اور کتنے پیسے بھر کے، لیکن وہ جو نیچرل چیز ہے اس کی بات ہی الگ ہے جو خدا نے فطری طور پر انسان کے اندر رکھی ہے. اسی طرح خدا نے خدا کا ایک ہونا، اپنی خدائی یعنی توحید کا ماننا ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے. انسان چاہے کتنا ہی مال کو پوج لے، چاہے کتنے ہی بتوں کو بنا کر ان کی عبادت کر لے، لیکن جب تک انسانیت کا سر خدا کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا اس کو سکون نہیں ملتا. آج کل لوگ عموماً کہتے ہیں زندگیوں میں سکون نہیں ہے. عزاداران محترم، اس لیے سکون نہیں ہے کہ ہم اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں کرتے، ہم خدا کو واقعاً خدا نہیں مانتے، ہم اپنی تنہائیوں میں نہیں مانتے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. حتیٰ کہ اگر اس کمرے میں ایک چھوٹا معصوم بچہ بیٹھا ہوگا تو ہم اس کے ڈر سے گناہ نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم اکیلے ہیں تو ہماری تنہائیاں ناپاک، اللہ نہ کرے کہ کسی کی تنہائیاں ناپاک ہوں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو سوچ لے کہ ہم خدا کو نہیں مان رہے. زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کو ماننا ضروری ہے. آپ اگر تنہائی میں جیسے ہیں ویسا ہی آپ ظاہر میں بھی آپ کو ویسا ہونا چاہیے. خدا کا انکار آپ کی روح کرتی ہے. بظاہر ہم اگر منہ سے کہیں ہم خدا کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ ادھر سب مسلمان بیٹھے ہیں، ادھر سب علی کی ماننے والی ہیں، لیکن اگر ہمارا وجود، ہمارے اعمال اس کی نفی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ہماری یہ اعضاء ہمارے گواہی دیں گے. کیونکہ یہ جو اعضاء اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم چاہیں تو اسی ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم کریں، ہم چاہیں تو اسی ہاتھ سے کسی کو صدقہ دیں، لیکن یہی ہاتھ جب عالم قیامت میں جائے گا تو یہ اپنے خالق کے سامنے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے اسی ہاتھ سے نعرے لگائے تھے، یا اللہ اسی بندے نے اس یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبانیں، یہ سب گواہیاں دے گی. یہ آپ نے جو یا علی بولا یہ گواہی دی جائے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بس ایک دفعہ یا علی کہہ کے ہم اٹھ گئے، عزیزان محترم یہ باقاعدہ گواہی دی جائے گی. لیکن اگر اس سے خدا نخواستہ کوئی برا کام ہوا
वो भी जाकर खुदा के सामने गवाही देगा कि इस मौके पर इसने मुझे सही इस्तेमाल नहीं किया। हर चीज अल्लाह के सामने गवाही देगी। ये दरख्त, ये जमीन, जिस जमीन पर खड़े होकर हम नेकी करते हैं, ये पूरी जमीन एक एक खातून की गवाही देगी कि ये अपने वक्त निकाल कर अबादुल्लाह हुसैन के जदारी में आई और अपने आप को सुधारने की कोशिश की। इस खातून ने, इस मर्द ने कोशिश की कि ये इलाही निजाम में अपना अमल दिखा सके, इलाही निजाम में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। अजीजान मोहतरम, जरूरत है इस वक्त हुसैनियत को, महदवियत को जरूरत है कि हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। अक्सर मैं सुनती आती हूँ कि खवारात कहती हैं, औरतें कहती हैं कि पता नहीं कई सालों से हम दुआएं मांग रहे हैं अपने अल्लाह के हुजूर, अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इस जगह पर मैं ये कहूंगी कि एक मिसाल है, अगर सामने आग लगी हुई है और आपका कोई बच्चा उस आग की तरफ बढ़े, वो नहीं जानता कि आग क्या है, छोटा सा 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो नहीं जानता कि आग क्या है, आप उसको आग के पास जाने देंगी? नहीं। कोई भी औरत और ना भी हो, किसी की बहन हो, वो बहन भी अपने छोटे भाई को, बहन को नहीं जाने देगी, क्योंकि वो जानती है कि ये आग इसको जला देगा। वो बच्चा नहीं जानता, वो बच्चा तो उसकी रोशनी देख रहा है, वो कह रहा है इतनी रोशन चीज क्या है। इसी तरह कुछ हमारी दुआएं जब कबूल नहीं होती अल्लाह के हुजूर, इसका मतलब है क्योंकि खुदा हमें 70 माओं से बढ़कर जानता है, 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। हम तो एक माँ होकर उस बच्चे को रोक रहे हैं, तो खुदा जानता है कि कुछ ऐसी मसलहत है जिसकी वजह से वो दुआ कबूल नहीं हो रही। हमारी नजरों में उस बच्चे की तरह, जैसे उस बच्चे को वो आग बहुत पसंद आ रही है, हमें भी अपनी दुआएं जो हो सकता है शरे के हिसाब से बिल्कुल सही हो। जैसे हम औलाद की दुआ करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनको 17-18 साल हो जाते हैं, औलाद नहीं है, फिर भी हम दुआ तो कर सकते हैं क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। लेकिन अगर अल्लाह इसकी कबूल नहीं कर रहा, हो सकता है कि वो औलाद आगे जाकर आपकी आकबत के लिए दुरुस्त ना हो, वो औलाद आगे जाकर शकी बन जाए। अगर खुदा ना खास्ता किसी की औलाद आगे जाके यजीदी बन जाए और माँ बाप हुसैनियों में से हो, तो माँ बाप को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, वो खून के आंसू पीते हैं, वो तड़पते हैं, उस तड़पने से रोकने के लिए अल्लाह उसको औलाद नहीं देता। इसी तरह माल है, पैसा है, इंसान बहुत मेहनत करता है और इस्लाम में कहा गया है आप मेहनत कीजिए, अपने घर वालों को सहूलियत फराहम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस गुर्बत में रहे, नहीं, इस्लाम ने कहा है हलाल रोजी कमाओ, घर वालों को सहूलत में रखो। लेकिन अगर मेहनत के बावजूद आपको धन नहीं मिल पा रहा, आप उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि ये जो पैसा आएगा ये आपको या तो यजीदियत की तरफ लौटा देगा या फिर कुछ ऐसी चीज है कि जिसमें भलाई नहीं है आपके लिए। इसीलिए अल्लाह मसलहतन वो दुआएं हमारी पूरी नहीं करता। लेकिन जब हमारे हर दरवाजा खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनको आसरा होता है ये हमें नौकरी दिलवा देगा, इधर जाएंगे इस डॉक्टर के पास तो हमारा इलाज हो जाएगा, हमें बच्चा मिल जाएगा, बहुत से ऐसे मशहूर होते हैं। लेकिन जब इधर से भी नाउम्मीद होता है तो इंसान सिर्फ एक डर पे जाता है, वो अल्लाह का डर है, वो इन हस्तियों का डर है कि इन्हीं के पास हम जाते हैं कि जब इंसान इन पर तकिया करता है तो अगर इंसान की वो दुआएं न भी कबूल होती हैं, इंसान की रूह में अल्लाह, क्योंकि अल्लाह का कुरान में इरशाद है कि मैं अगर एक चीज नहीं देता तो उसके बदले उससे बेहतर चीज देता हूँ। अगर आपको औलाद नहीं मिल रही तो उससे बेहतर आपके रूहानी लिहाज से आपके बरज़ख में कयामत के बाद आपको जरूर एक ऐसी बेहतरीन चीज मिलेगी कि जब आप उस जहान में जाएंगे तो आप कहेंगे कि या अल्लाह ये नेकियां तो मैंने नहीं की, ये किस चीज का असर है, ये किस चीज के समरात हैं। उस वक्त अल्लाह कहेगा कि तुम्हारी वो ख्वाहिशात कि जो तूने दुनिया में मुझसे बारहा मांगी लेकिन मैंने कबूल नहीं की, ये उसकी वजह से मैं तुम्हें ये जन्नत में ये घर दे रहा हूँ, ये नहरें दे रहा हूँ। या अल्लाह
अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। बस ज़रा मोहतरम अपने शऊर को उजागर कीजिए। कोई भी मुसीबत आती है अल्लाह पे मत टूटिए कि अल्लाह ने मेरे साथ क्या कर दिया। जब हमारा शऊर बेदार होगा, जब हम वाकई उलमाओं की सुनेंगे, उनसे मुंसलिक रहेंगे, तो हम हमेशा अल्लाह की रजा पे राजी रहेंगे। अज़रान मोहतरम, इसी तरह एक और बात पूछूंगी कि जिस मेहदी का हम इंतजार कर रहे हैं, हमें हर कोई अपने बारे में सोचे कि हमें कितना अपने इमाम को हम जानते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है, रसूल कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने दौर के इमाम की मार्फत के बगैर मर जाता है तो गोया कि वो जहालत की मौत मरा है। तो इमाम की मार्फत क्या, अगर मैं आपसे पूछूं आप कहेंगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौला का नाम पता, हमें उनके वालिदैन का पता, हमें उनकी तारीफ पैदाइश पता। क्या ये इंफॉर्मेशन होना काफी है आप लोगों के लिए? क्योंकि ये वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो कि शिमर को भी इमाम हुसैन के बारे में पता थी। शिमर ने तो अपनी आंखों से देखा था कि इमाम हुसैन जो है वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं। इसी तरह इब्ने मुलजिम खुद मौला अली के साथ रहने वाला, उनके सहाबियों में से था, वो जानता था कि मौला अली कैसे हैं, उनके साथ उसने जंगों में गया है, कितना कुछ जानता होगा, लेकिन उसने फिर भी क्या किया, मौला को शहीद कर दिया। यानी कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये असल मार्फत के लिए, इमाम की मार्फत के लिए काफी नहीं है। इमाम की मार्फत के लिए जरूरी है कि हम उन चीजों को सुने कि जो इमाम हमसे चाहते हैं, इमाम क्या चाहते हैं और इमाम खुद अपने अल्लाह की बारगाह में कैसे हैं। इमाम ये हमें करके दिखा रहे हैं। फातिमा ज़हरा का पूरा खानदान ने हमें ये करके दिखाया कि अल्लाह के हुजूर इंसान को कैसा होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मार्फत इमाम क्या है। हमें अपने इमाम से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि इमाम की बस, जैसे हमारे घर में अगर हमारे बाप चले जाएं कहीं घर से बाहर तो बच्चे कैसे तड़पते हैं कि जब तक बाबा घर ना आ जाए दिल नहीं लगता घर में, जब तक वो खास वर्ग की जिससे बहुत मोहब्बत होती है। इसी तरह हमें वो तवक्कुल होनी चाहिए अपने इमाम की, क्योंकि इस वक्त इमाम गैबत में है। अल्लाह ने कुछ वजूहात की बना पर उनको गैबत में किया। क्यों किया? और दूसरा ये कि एक और सवाल कि इमाम की जरूरत क्या थी जब अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया मबूस फरमाए। इतने अंबिया, एक नहीं, दो नहीं, 1,24,000, तो फिर आखिर इमामत की जरूरत क्या थी? यही चीज समझने के लिए ये मजलिस अज़ा बर्पा हुई है। अल्लाह ने जब दुनिया को खल्क किया, सबसे पहले नबी आए, 1,24,000 के बाद अल्लाह उसी शरीयत को इंसानों को दे सकता था, क्योंकि रसूलुल्लाह ने वाक़ई जितने भी अंबिया आए उन सब ने अपना काम कर दिया था। जब काम हो चुका है तो फिर इंसान को, क्योंकि अब आप देखें कितनी तरक्की की है इंसान ने। अगर हम देखें, एक जमाना ऐसा होता था कि बुजुर्ग हजरात कहते थे कि आसमान पे कुछ उड़ ही नहीं सकता, ऐसे कैसे होगा कि आसमान पे लोग सफर करेंगे, लेकिन आज आप सबके सामने जहाज मौजूद है। इसी तरह एक जमाने में कोई सोच नहीं सकता था कि टेलीफोन बगैर तार के भी आएगा, लेकिन मोबाइल आप सबके सामने है। मोबाइल में भी इंटरनेट, यानी आप यहाँ से बैठकर सिर्फ बात नहीं, उसकी शक्ल भी देख सकते हो। इतनी चीजें आ चुकी हैं, हत्ता कि अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप पुरानी अपनी तस्वीरें उठाएं और वो हिलने जुलने लगेंगी, यानी उनमें मोशन पैदा हो जाएगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि इंसान को यकीन नहीं आता। तो जब इंसान इतनी तरक्की कर सकता है तो उसको इमामों की क्या जरूरत? लेकिन इंसान ने दुनियावी लिहाज से तरक्की की है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम वो इंसान नहीं रहा। इंसान को इंसान बनाने के लिए ये अंबिया आए थे और फिर अल्लाह ने इन्हीं 12 को मबूस किया, क्योंकि जरूरी था कि एक ऐसी शख्सियत हो, एक ऐसा 12 इमाम हो कि जो मासूम हो और वो वाकई इंसान को इंसानियत की राह पे लगा सके। क्योंकि आज आप देखें हर तरफ दरंदगी है, हम कहीं नहीं देखते कि कहीं इंसानियत नजर आए। अपने ही घरों में देखें, बहन भाई से लड़ रही है, भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक जमीन के टुकड़े के लिए फसाद हो रहे हैं। बाकायदा ये लोग जाते हैं अपने जजेस के पास कि हमें इंसाफ दीजिए, कोई इंसाफ नहीं कर रहा, पड़ोस से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंसानियत खत्म हो गई है। इंसान का मतलब ये होता है एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की गलतियों को माफ करना। हम एक दूसरे की गलतियों को माफ ही नहीं करते। जब हम इन चीजों से निकलेंगे तो अपने इमाम को समझेंगे।
जब हम अपने घर की हसद, फसाद, जंग जदाल जो हम घरों में रख के बैठे हुए, इसके बाद निकलेंगे तो हम अपने इलाके के, अपने जो हमारा पाड़ा कहलाता है, उसमें हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। जब हम अपने हमसायों से मोहब्बत करेंगे तो फिर हम अपने इर्द गिर्द के जो मुल्क है उनसे भी मोहब्बत करेंगे। फिर ये पूरा का पूरा दुनिया अमन का गहवारा होगा। और जब ये उम्मत बन जाएगी तो इंशाअल्लाह कि मेरा वक्त का इमाम मेहदी अजलल्लाहु जमाना के बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। खुदावंद मुतआल हम सबको पता है गफूर रहीम है, गुनाहों को माफ करने वाला है। वो शैतान के जिसने इतनी इबादतें की थी, खुदा ने उसकी इबादत तो क्यों, मतलब इतनी इबादतों को सिर्फ एक तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने कहा कि नहीं, इसको अपनी दरगाह से बाहर निकाल दिया। क्यों? हम अमूमन यही कहते हैं कि तकब्बुर की वजह से शैतान निकला है। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। बहुत से ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जनाबे हुर हमारे सामने हैं। गुनाहों को माफ करना खुदा हमेशा माफ कर देता है, लेकिन शैतान ने ऐसा क्या किया था? शैतान ने जो काम किया था वो ये था कि खुदा ने कहा था कि ये आदम मेरा खलीफा है। उसने अल्लाह के इलाही निजाम में दखल किया था, उसने इस इलाही निजाम को जो नहीं माना, इसी वजह से वो जन्नत से निकाला गया। अल्लाह ने जब कहा कि तुझे सजदा करना है और उसने खुदा की इस हुक्म की नाफरमानी की, तभी वो शैतान बना है और खुदा ने उसको अपनी दरगाह से बाहर निकाल दिया। यानी इलाही हुकूमत, यानी ये निजाम आपकी रिश्तेदारियां नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि ये मेरा दोस्त है या नहीं। अगर यहाँ पर आप अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाएंगे तो फिर अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। बस हम खुदा से दुआ करते हैं कि हमें वाक़ई जनाबे हुर जैसा बनाए। जनाबे हुर वो थे कि जिन्होंने, जो कि पहले यजीदी लश्कर के करता धरता थे, फौज में थे और उसका हुक्म मान रहे थे। हम सब जानते हैं कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद इस्तकबाल किया है जनाबे हुर का, और अब्बास को हुक्म दिया है कि देखो बहुत थके हुए आ रहे हैं, इनको पानी पिलाओ। हत्ता कि हुसैन जानते हैं कि एक वक्त आ जाएगा कि उन्हीं के खैमे से अलअतश की सदाएं आ रही होंगी। लेकिन हुसैन ने उनको पानी पिलाया और उसके बाद जब नमाज का वक्त हुआ है तो इमाम हुसैन कहते हैं, ए हुर, मैं इस तरफ नमाज पढ़ता हूँ, तुम उस तरफ जाके नमाज पढ़ लो। लेकिन हुर क्योंकि जानते हैं कि ये फातिमा ज़हरा के लाल है, कहा नहीं मौला हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। लेकिन जब मौला वहां से चलने की करते हैं तो उनको फौरन रोक दिया जाता है। हुर रोकता है उनको, कहता है मौला मुझे हुक्म है, मुझे यजीद की तरफ से हुक्म है कि मैं आपको रोकूं। उस वक्त मौला हुसैन एक जुमला कहते हैं कि ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। ये अरब के लिहाज से एक ऐसा जुमला था कि हुर को तैश आ गया, लेकिन वो जानता था कि ये फातिमा ज़हरा का लाल है। कहा मौला अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं इसका जवाब देता, लेकिन मुझे मालूम है आप फातिमा के लाल हैं। मौला ने क्यों ये जुमला कहा? इसलिए ताकि हुर सोचे, ऐसा ना हो कि हुर भी उस तरफ निकल जाए कि जहां जहन्नम है। और यही हुआ, इस जुमले की वजह से जनाब हुर सोचते रहे। 2 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम आ गई और हुर तड़प रहे हैं, कभी एक खैमे में कभी दूसरे खैमे में। आखिर वो बाहर निकले क्योंकि सुकून नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कि मैं जो इस मकाम पर खड़ा हूँ आखिर मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। उस वक्त जनाब हुर जब बाहर निकले हैं तो देखते हैं कि एक शख्स अपने घोड़ों को पानी पिला रहा है और हरम हुसैन से अलअतश की प्यास की आवाजें आ रही हैं। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि हुसैन को कोई मार दे? उम्र साद के खैमे में जाते हैं, कहते हैं मुझे सच बताओ क्या वाकई कल जंग होगी? कहा हाँ हम इन सबको कत्ल कर देंगे, हम बाजू कता कर देंगे, हम इनकी चादरें छीन लेंगे। बस ये सुनना था कि तड़पते हुए निकले हैं और अब रुख किया है खैमा इमाम हुसैन की तरफ। बेटा भी साथ आ गया, गुलाम भी साथ आ गया, लेकिन अपने बेटे से कहते हैं रुको, अभी नहीं जाना हुसैन के काफिले की तरफ, पहले मेरे इन हाथों को बांध दो। कहा बाबा क्यों? कहा इन्हीं हाथों से मैंने हुसैन को रोक दिया था। कुछ और आगे बढ़ते कहते मेरी आंखें बांध दो। अरे बाबा आंखें क्यों बदला रहे
سيعلم الذين